Hello everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CSNSR. I'm Ramsha from CSNSR, and today in this video we're gonna discuss about CPER requirement for ICI members. Now for the discussion of this video, we have our special guest speaker, CA Vivek Khurana sir. A very warm welcome to you sir. Thank you for joining us today. Now before beginning with the video, I want to make a small request to our viewers to please like this video, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. Now, sir, can you please discuss about the CPE requirement for ICI members? Thank you very much, Ramsha, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some another important topic. And yes, today we will discuss about the CPO requirement for the members of ICI. So uh, and the penal provisions for non-compliances कि अगर आपने CPOs complete नहीं किए जो requirement है तो what would be the penal provisions because ICI had introduced the penal provision for non-compliance of CPOs and as per my personal views this is not the welcome step जो penal provision है it's not good because व्हाट द पर्पस जो सीपीओस जो स्टार्ट हुए थे उसका पर्पस क्या था टू अपडेट द knowledge of the members and nowadays at that time when the cpo started at that time there was no social media YouTube and other this one platform but nowadays कोई भी एक अगर अपडेशन आती है तो इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाती है होल मेंबर्स आर अपडेटेड किसी भी मेंबर से पूछ लो दे नो ईच एंड एवरीथिंग and ICI have their own digital learning hub. ICI have their own YouTube channel. ICI have their own e-learning portal. तो आप उसके थ्रू क्यों नहीं अपडेट करते? Why it's necessary कि I should go for the physical seminar? Why not it's available on the YouTube? Yes, you can charge the fees low, no issue at all. But why it's compulsory to go for the structured CPOs and the physical seminar and then penal provisions are there? It's not good. But yes, the provisions are there. So let's discuss one by one. Let me show you through the PPT. Yes. Yeah, I think it's a visible. हाँ, तो CPO's requirement for ICI member and the penal provision for non-compliance. Before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed to be the views of the ICI, CSNSR, or any other authority or any other person. And don't take it any legal advice, legal opinion, professional advice, or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any other manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also go through the ICA website, CPO जो कमेटी की नोटिफिकेशन सकता है that you can also check. So जो कैलेंडर ईयर 2023 ऑनवर्ड्स जो आपका 2023 ऑनवर्ड्स इस उसमें कुछ चेंजेस हैं काफी सारे चेंजेस हैं पहले क्या था देयर वाज ए ब्लॉक पीरियड तो ब्लॉक पीरियड था 3 इयर्स का इन दैट ब्लॉक पीरियड member of the ICI have to complete some CPOs जो structured थे या unstructured थे but it was before the 2023 and 2023 onwards now ICI said you have to complete the CPOs in a calendar year basis means आपको हर ईयर में आपको CPOs complete करने हैं so जो ब्लॉक पीरियड था दिस इज रोल ओवर नाउ यू हैव टू कंप्लीट द CPOs कितने CPOs कंप्लीट करने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कितने स्ट्रक्चर्ड है कितने अनस्ट्रक्चर्ड है इफ यू आर इनटू प्रैक्टिस इफ यू आर इनटू जॉब तो वेदर इट्स आल्सो कंपल्सरी फॉर द मेंबर हु आर इनटू जॉब उनके लिए भी क्या कंपल्सरी है यस वो भी हम डिस्कस करेंगे बट ICI have also introduced the penal provision from 2024 onwards कि अगर आपने कैलेंडर ईयर में CPOs की रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट करी कि आपने CPOs कंप्लीट नहीं किए देन देयर वुड बी द penal provision में क्या है आपको
गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट भी डाउन हो जाएगा, या फिर एमईएफ के टाइम पे इश्यू आएंगे, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। दैट्स नॉट द गुड थिंग, बट यस, अभी जो प्रोविजंस हैं तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जो पीनल प्रोविजंस है, अभी हम एग्जांपल लेते हैं 2024 का जो बेस ईयर है, कि आपको 2024 में आपको सीपीओस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने हैं। इफ यू आर इनटू प्रैक्टिस तो आपको कुछ सीपीओस कंप्लीट करने होते हैं, इफ यू आर इनटू जॉब तो आपको कुछ सीपीओस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कैलेंडर ईयर में कंप्लीट नहीं किए सीपीओस, देन देयर आर 4 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल 1 में क्या होगा, जब आपको कंप्लीट करना है, जैसे हमने बेस पीरियड लिया 2024, तो उसके नेक्स्ट मंथ में आपकी लास्ट डेट क्या थी, 31 दिसंबर कंप्लीट करने की। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो नेक्स्ट 6 मंथ में जितना भी आपका शॉर्टफॉल है, क्या आप यू विल गेट ए मेल 31 दिसंबर के बाद, जब आपका कंप्लीट होगा कैलेंडर ईयर, आपको मेल या नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपके इतना शॉर्टफॉल है, आपने इतने सीपीओस कंप्लीट नहीं करे, चाहे यू आर इनटू जॉब या प्रैक्टिस, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी यू विल गेट द नोटिफिकेशन, दिस आर द शॉर्टफॉल, एंड इन नेक्स्ट 6 मंथ यू हैव टू कंप्लीट द ट्वाइस ऑफ शॉर्टफॉल। जो आपका डेफिशिट है, अगर आपने आपको 20 स्ट्रक्चर करने हैं और अगर आपने 10 किए, तो 10 जो डेफिशिट है उसका ट्वाइस मींस 20 आपको कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट 6 मंथ। कंप्लीट कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ में जितना भी आपका डेफिशिट है उसका 2 टाइम्स आपको कंप्लीट करना है। एंड देन लेवल 2, अगर आपने जो डेफिशिट कंप्लीट नहीं किया, देन इन नेक्स्ट 6 मंथ जो आपका नॉन कंप्लायंस स्टेटस होगा, इट विल बी पब्लिकली डिस्प्लेड ऑन द आईसीआई पोर्टल। आईसीआई ई पोर्टल पे पब्लिकली डिस्प्लेड होगा दैट दीज मेंबर दे आर द डिफॉल्टर, किन्होंने ये सीपीओस की रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट नहीं करी, इट्स देयर नेम, वो आपके पब्लिकली डिस्प्लेड होगा। एंड देन लेवल 3, जो लेवल 3 होगा नेक्स्ट 6 मंथ में, अगर स्टिल कंटिन्यू आपका स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है कि आपने जो डेफिशिट कंप्लीट नहीं करी, इन दैट केस प्रॉब्लम विद योर एमबीएफ, जो मल्टीपल एम्पेनलमेंट फॉर्म होगा उसमें शो होगा कि आपने सीपीओस की रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट करी थी, देन प्रॉब्लम विद योर जो एम्पेनलमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, आपके प्रोप्राइटर है या पार्टनर्स हैं, तो इट विल शो कि आपके ये पार्टनर्स की सीपीओस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई। एंड आल्सो जो आपकी CP committee है, this will report to the PDC committee. फिर PDC committee will take the action for at the time of multiple empanelment form. And then level 4 next 6 month में अगर it still exist कि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है द फाइनल स्टेज, देन इन दैट केस आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपका जो पीयर रिव्यू है विद होल्ड हो जाएगा, एंड देन मैटर विल रेफर टू द डिसिप्लिन डायरेक्टरेट। जो डिसिप्लिन डायरेक्टरेट को है फॉर फर्दर एक्शन के लिए मैटर विल डिस्क्लोज। दिस इज नॉट द गुड स्टेप। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नॉट द किड्स, यू कांट फोर्स देम विद ए स्टिक कि आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। यू शुड डू इट थ्रू द ऑनलाइन यूट्यूब, उसके थ्रू ई लर्निंग पोर्टल, डिजिटल लर्निंग हब के थ्रू, डीएलएच के थ्रू आप कर सकते हो। बट यस, so these are the penal provision जो ICAI ने इंट्रोड्यूस किए इन 4 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। दिस इज द समरी कि हमने जो एक बेस ईयर लिया है, इट्स 2024, आपको उसमें कैलेंडर ईयर में कंप्लीट करने हैं, कितने कंप्लीट करने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन आपको नहीं कंप्लीट किए उस कैलेंडर ईयर में, देन विद इन 6 मंथ लेवल 1 आ जाएगा। लेवल 1 में क्या करना पड़ेगा, आपको डबल कंप्लीट करने पड़ेंगे जो शॉर्टफॉल होगा, और देन लेवल 2 में अगर नहीं कंप्लीट करते तो पब्लिकली डिस्प्लेड हो जाएगा आपका नाम एज ए डिफॉल्टर आईसीआई ई लर्निंग और आईसीआई जो ई पोर्टल्स हैं। देन नेक्स्ट स्टेप 3 में आपका मल्टीपल एम्पैनल फॉर्म में एमईएफ में इशू आएगा, एंड देन पीडीसी कमेटी, सीपी कमेटी जो पीडीसी कमेटी को रेफर कर देगी। एंड देन लेवल 4 में क्या होगा, अगर आपका स्टिल एग्जिस्ट है, देन आपका जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, पीयर रिव्यू विद हल्ड हो जाएगा, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एंड मैटर विल रेफर टू द डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। So this is the penal provision. Now we will see कि आपको कितने CPOs कंप्लीट करने हैं। So in a calendar year, if you are the member who are residing in India and under the age of 60 and holding a COP, means आपके पास certificate of practice है and you are residing in India and below the 60-year age, and in that case you have to complete 40 CPOs in a calendar year। 40 CPOs आपको कंप्लीट करने हैं, एंड आउट ऑफ 40 जो 40 है दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट, एट लीस्ट 40 इन ए कैलेंडर ईयर।
and out of 40, at least 20 should be structured CPUs, and the rest will be structured or the unstructured. So what's the difference between structured and unstructured? Structured means where you are going physically. Like for example, if the ICI or the regional council or the branches or the study circle organizing any seminar and you are going physically there, then they will provide you the structure. कई बार डिजिटल लर्निंग हब के थ्रू भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आईसीआई प्रोवाइड कर देता है आपको ई लर्निंग पोर्टल के थ्रू भी स्ट्रक्चर सीपीओस. या फिर इफ आईसीआई ऑर्गेनाइजिंग सम कोर्स जैसे डिशा कोर्स है या अभी एआई का कोर्स है, then also they will provide you the structured CPUs. So in case your age is less than 60 and holding the certificate of practice, then you have to complete 40 CPUs, out of which at least 20 structured and rest either structured or unstructured. तो अनस्ट्रक्चर्ड कैसे आप कर सकते हो? यू कैन गो टू द cpapp.ici.org, वहां पे जाके आप अपडेट कर सकते हो कि मैंने आईसीआई जर्नल के थ्रू या थ्रू दीज साइट्स आई हैव अपडेटेड माय सेल्फ. तो देन दे विल प्रोवाइड यू द अनस्ट्रक्चर्ड सीपीयू. उसमें नो फीस. दे विल आपसे ओनली दे विल आस्क कि आपने क्या क्या कहाँ से स्टडी करी है, तो दे विल प्रोवाइड यू द अनस्ट्रक्चर्ड सीपीयूस. एंड देन if a member of ICI under the age of 60 and not holding COP, अगर आपके COP नहीं है, means either you are into job or you are into business, and if in case you are not residing in India, मतलब बाहर रहते हैं, in that case you have to complete at least 20 CPUs, either structured or unstructured. means आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है आपको स्ट्रक्चर जाना, तो आप स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर, बट ओनली at least 20 in a calendar year. And then member who are above the 6 year age, 6 year की एज से ज्यादा है and holding certificate of practice, in that case that member have to complete 30 CPUs. 30 CPUs complete करने either structured or the unstructured in a calendar year. Complete. And then there are some recommendation. Earlier it was mandatory कि अगर आपको if आपको कंप्लीट करने हैं स्ट्रक्चर सीपीओस, जो आपके मेंबर्स हैं वो आर द लेस देन 60 इयर्स एज एंड होल्डिंग ए सीओपी, उनके लिए कंपल्सरी है कि आपको 20 स्ट्रक्चर सीपीओस कंप्लीट करने हैं. इन दैट केस उनके लिए था कि आप 4 स्ट्रक्चर सीपीओ करें, 2 out of which 2 structure CPO is for the standard of auditing and 2 is for the code of ethics. You can do it either डिजिटल लर्निंग हब के थ्रू कर सकते हो या फिर फिजिकल मोड के थ्रू कर सकते हो. और इसमें भी earlier before 2024 it was mandatory, but now it's the recommendatory कि आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो भी नहीं कर सकते. करना भी चाहते हो तो डिजिटल लर्निंग हब के थ्रू भी यू विल गेट 4 स्ट्रक्चर सीपीयूस. अब डीएलएच के थ्रू ले सकते हैं, 4 स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन मोड में भी. एंड देन जो इन 2023 था, इट वाज आल्सो द मैंडेटरी प्रोविजन कि आपको 4 स्ट्रक्चर सीपीयूस डिजिटल लर्निंग हब के थ्रू अपने जो फॉर दोस पर्सन जो मेंबर्स हैं हमारे वो आर होल्डिंग ए सीओपी एंड लेस देन 60 इयर्स एज, तो उनके लिए कंपल्सरी था कि आपको डीएलएच के थ्रू 4 कंप्लीट करना है स्ट्रक्चर सीपीयूस. बट नाउ इट्स रिकमेंडेटरी. वो आपको कैसे करना था? आप learning.ici.org के थ्रू जाके आप वहां पे 4 स्ट्रक्चर और कंप्लीट कर सकते हैं. बट नाउ इट्स रिकमेंडेटरी. एंड अगर आप 4 से ज्यादा करते हो वहां पे, देन इट जो ये है काउंट होंगे आपके अनस्ट्रक्चर्ड सीपीयूस. कंप्लीट है. तो आईसीआई प्रोवाइडिंग ऑलरेडी प्रोवाइडिंग 10 सीपीयूस स्ट्रक्चर्ड थ्रू आपके डीएलएच के थ्रू या ई लर्निंग पोर्टल के थ्रू. यू कैन क्लेम दैट. अनस्ट्रक्चर्ड तो दे ही रही है 20 आपको, वो जो cpapp.ici.org के थ्रू यू कैन अपलोड, बट आपको स्ट्रक्चर्ड भी दे रही है. व्हेन ICI is providing 10, then 20 में क्या इशू है? Why it's mandatory to go with the physical seminar? Why I can't get it through the e-learning portal, the digital learning hub, the ICI YouTube channel? Knowledge ही तो upgrade करनी है. Why I can't do? So that's my issue कि जो disciplinary action है, it's not a good thing for the member of ICI. So now we will discuss जो exemption है. कुछ एग्जाम्पशन है सीपीओस रिक्वायरमेंट की फॉर न्यूली क्वालिफाइड मेंबर्स. अगर किसी न्यूली क्वालिफाइड मेंबर्स ने एनरोल किया विद द आईसीआई एंड दिन दैट ईयर, जो जिस ईयर में वो एनरोल कराते हैं उस ईयर में इट्स द एग्जाम्पशन. कि फॉर एग्जांपल अगर किसी मेंबर ने मई में एनरोल करवाया विद द आईसीआई एज ए न्यूली क्वालिफाइड मेंबर, आईसीआई मेंबर, इन दैट केस exemption for that calendar year, you don't have to complete either you are into job or into practice. कोई जरूरत नहीं है आपको CPOs की in only first year. And then
member age 60 years, अगर कोई member 60 years and above है, 60 years and above, and who are not holding COP, अगर COP नहीं है, मतलब you are into job या practice में है, or sorry, you are into job or business में, then in that case you don't have to complete the CP hours requirement. Then कोई member है ICI का, who are a judge of Supreme Court या High Court, District Court and the Tribunal, they are also exempted for the CP hours requirement. Then member who are the MP, MLA, MLC, governor of states and the civil services जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर करें, उनके लिए भी एग्जाम्पशन है. Then member of ICI who are the entrepreneurs, कोई बिजनेस ओनर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द प्रोफेशनल सर्विसेज, उनके लिए भी एग्जाम्पशन है. देन जुडिशियल ऑफिसर, कोई मेंबर है जो जुडिशियल ऑफिसर है एंड मेंबर इन द मिलिट्री सर्विसेज, वो भी एग्जाम्प्ट है. सो और कुछ टेम्परेरी एग्जाम्पशन है. ये जो एग्जाम्पशन थी, दिस इज द परमानेंट, मींस अगर कोई आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, कोई आईसीए मेंबर, तो उनके लिए परमानेंटली एग्जाम्प्ट है. या फिर कोई 60 इयर्स एंड अबव है who doesn't have the holding a COP, उनके लिए भी एग्जाम्पशन. तो these are the permanent exemption. कुछ एग्जाम्पशन है which are temporary basis पे. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फीमेल मेंबर, कोई आईसीआई की फीमेल मेंबर है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का ईयर है उस कैलेंडर ईयर में CP और रिक्वायरमेंट आर एग्जाम्प्ट. देन कोई फिजिकली डिसेबल्ड मेंबर है, ऑन इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, कि कुछ को परमानेंट डिसेबिलिटी है नॉट लेस देन 40% एंड अबव, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स वगैरह की, एंड उसके अलावा कुछ कंडीशन है, इन दैट केस इट्स आल्सो टेम्परेरी एग्जाम. देन कोई मेंबर है, कुछ स्पेसिफिक डिसीज, कोई जो क्रिटिकल डिसीज या इलनेस है या कोई और डिसेबिलिटी है जो स्पेसिफाइड अप्रूव्ड है उसके सीपीडी वगैरह से, उसके अलावा कुछ कंडीशंस है, अगर वो फिलफिल होती है उस केस में इट्स द टेम्परेरी एग्जाम्पशन. क्लियर? नाउ फ्रॉम वेयर आई कैन चेक कि मेरे सीपीओ कितने कंप्लीट हुए हैं या कितने पेंडिंग है. यू कैन गो टू द वेबसाइट cpeapp.icaai.org. उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे. आपका जो मेंबरशिप नंबर है, इट्स योर यूजर आईडी, एंड देन जो पासवर्ड है, इट्स द डिफॉल्ट पासवर्ड सीपी, स्मॉल लेटर में सीपी, और जो आपका मेंबरशिप नंबर है, न्यूमेरिक में जो भी मेंबरशिप नंबर होगा, 520 या 12345, जो वट एवर इट में भी 6 डिजिट्स सीपी, और जो आपका मेंबरशिप, इट्स योर पासवर्ड. उसमें आप लॉगिन करेंगे. यू विल चेक कि आपने कितने स्ट्रक्चर सीपीओ कंप्लीट करे हैं, कितने अनस्ट्रक्चर सीपीओ कंप्लीट करे हैं, एंड कितना आपका डेफिशिट है इन ए कैलेंडर ईयर. देन वही सेम आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 यू हैव टू कंप्लीट जितना भी डेफिशिट है, आइदर यू इनटू जॉब या फिर प्रैक्टिस है. जॉब वालों के लिए तो ओनली अनस्ट्रक्चर्ड है. आप सीपीए इसी वेबसाइट के थ्रू जाके आप अपने अनस्ट्रक्चर्ड अपलोड कर सकते हो. एवरी ईयर 20 सीपीओस आप, यू डोंट हैव टू गो फॉर द फिजिकल सेमिनार. आप उसके थ्रू भी कर सकते हो. ई लर्निंग हब के थ्रू भी, अगर इफ यू वांट यू कैन गेट द स्ट्रक्चर सीपीओस. आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यस यू वांट टू अपडेट योरसेल्फ, तो आप डिजिटल लर्निंग हब के थ्रू, ई लर्निंग पोर्टल के थ्रू अपने आप को अपडेट कर सकते हो. सेम थिंग विद द मेंबर हु आर होल्डिंग ए सीओपी. आप 20 अनस्ट्रक्चर्ड अपलोड कर सकते हो, 10 स्ट्रक्चर्ड भी क्लेम कर सकते हो थ्रू द डीएलएच एंड द ई लर्निंग पोर्टल. उसके थ्रू आप कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करके यू कैन गेट दैट, एंड ओनली यू हैव टू कंप्लीट द 10 स्ट्रक्चर सीपीओ, जो आप अपने किसी सेमिनार्स के थ्रू या फिर कोई कोर्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो. नहीं तो वही पीनल प्रोविजन है. सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर किसी मेंबर्स ने कंप्लीट नहीं करी आपकी ये रिक्वायरमेंट CPOs की. तो in case any other further query, then you can discuss. Yes, Ramcha. Thank you so much, sir, for your valuable information and valuable time. We really appreciate it. So in case you have any query, any further discussion, yeah, some feedback is there, you can WhatsApp me, or you can also message me in the message book. We'll try to resolve the query as soon as possible. And my sincere thanks to Team CS Sansar once again for giving me the opportunity. Bye bye and take care.